Hello students. Today I am going to teach you nutrition in plants of class 7th. Okay. So what we are going to study in this chapter? Nutrition. What is nutrition? The types of nutrition, autotrophic nutrition, what is photosynthesis, conditions necessary for the photosynthesis. I have divided the chapters into two lectures. Okay, so in the first lecture we are going to study these topics. So let us start with the first topic, that is nutrition. What is nutrition? We have already studied about this in class 6. Okay, you have studied these concepts in class 6 also, that nutrients are the chemical substances present in a food. Nutrients, what are the nutrients? These are the chemical substances which are present in a food. Okay, like your carbohydrates, your fats, your protein, all these are your components of food. And what these are known as? These are known as your nutrients. Okay, now these are the nutrients. So what is nutrition? Nutrition is the process by which an organism takes in food. the food किस प्रोसेस से एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में फूड को इनटेक करता है और यूटिलाइजेस फॉर एनर्जी, उसको किस तरीके से अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? न्यूट्रिशन. ओके, सो न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं? दीज आर द कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ फूड. ओके, and what is nutrition? Nutrition is the process by which an organism takes in food. Here I have taken two examples. Okay, this you will might find in your class 6th also. जो मैंने class 6th का lecture आपको पढ़ाया था sources of food, उसमें भी मैंने example explain किया था कि every organism is adopting a different way to intake the food. Like this frog is using its long sticky tongue to take in the food. It is benefiting it. Okay, so like mosquito is feeding on the ह्यूमन ब्लड. वो क्या करती है? ब्लड को सक करती, ऑर्गेनिज्म के ब्लड को सक करती. तो its body is adopted according to it. It is having a funnel tube like structure which helps in sucking the blood. ओके, सो फ्रॉग का फीडिंग टेकिंग का मेथड अलग हो गया, मॉस्किटो का अलग हो गया. फ्रॉग का फूड अलग हुआ तो उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी अलग तरीके से होगी. मॉस्किटो का फूड अलग है तो उसका प्रोसेसिंग अलग होगा. सो होल द न्यूट्रिशन, दिस होल न्यूट्रिशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? सो on a larger basis we can divide the nutrition into two types. What are the types of nutritions? Two types: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition, in the term autotrophic, the auto means self, like you say ना automatic means that turns automatically, मतलब जो अपने आप काम करती हो. तो auto means self and trophism means feeding. So कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खुद को फीड करता हो, जो खुद का खाना खुद बनाता हो, उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक. तो ऐसा कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स करते हैं. वो अपना खाना, जो उन्हें एनर्जी चाहिए, जो उन्हें फूड चाहिए, वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी ही बॉडी में. इसीलिए उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, बिकॉज दे आर अडॉप्टिंग फॉर द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. वो क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अडॉप्ट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना अपनी ही बॉडी में बनाते हैं जो कि वो यूटिलाइज करते हैं. क्लियर एवरीवन? सो ग्रीन प्लांट्स क्या हो गए? ऑटोट्रॉफ्स. क्यों? क्योंकि दे आर सेल्फ फीडिंग. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्लियर? नाउ इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से एक जो प्रोसेस मेजर आता है वो क्या होता है आपका? दैट इज योर फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ग्रीन प्लांट्स, हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड? ग्रीन प्लांट्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड, the water from their surrounding, and in the presence of sunlight what they are doing? They are preparing their food. In the last slide what I have taught you कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल्फ फीड करते हैं. सेल्फ फीड मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं. तो कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
सनलाइट की प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट, मीन्स सनलाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। सिंथेसाइज कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कॉम्बाइन कर रहे हैं कोई चीज़ों को। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? The process by which the green plants utilizes carbon dioxide, water in the presence of the sunlight to prepare their food. वो अपना खाना बनाते हैं, and this process is known as photosynthesis. Clear? Now, what are the conditions necessary for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? अभी हमने कुछ कंडीशंस पीछे पढ़ी, वो क्या क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए? सनलाइट की। इसके अलावा भी और क्या कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं? देखो, पहली, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मस्ट। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ वाटर इज मस्ट। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज मस्ट, एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. Okay, so now we will read these conditions necessary for photosynthesis in detail. Okay, now the presence of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स कहाँ से लेती हैं? एयर से लेती हैं, अपनी सराउंडिंग्स लेती हैं। आपके भी चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है। सो लीव्स क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती हैं। किसके थ्रू? स्टोमेटा. स्टोमेटा इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी लीव्स. ये क्या होता है? ये लीव्स में प्रेजेंट होता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आपकी नॉस्ट्रिल्स, आपकी जो नॉस्ट्रिल्स है, आप उसे इनटेक और क्या कहते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। ओके, वैसे ही लीव्स के पास एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है जिससे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। क्लियर? जिससे वहाँ पे क्या कहते हैं, वो क्या लेता है? अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अंडर साइड, मतलब लीफ के नीचे वाले पोर्शन में होते हैं। इसका भी एक रीज़न होता है, ये आप आगे जब ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में, ठीक है। उसके बाद स्टोमेटा सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। गार्ड सेल होते हैं, वो क्या करते हैं? दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा सेल्स। गार्ड सेल्स हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक, नाउ वी विल सी व्हाट आर स्टोमेटास। ये आप एक माइक्रोस्कोपिक लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एंड इसमें जो आपको बीच में स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ओवल शेप के, कुछ इसी टाइप के आपके बीन स्ट्रक्चर्स में आपके देखिए स्टोमेटा होते हैं। सी, ये जो आपके दो बीन शेप्ड दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? आपके गार्ड सेल कहलाते हैं। एक तरफ आपको ओपन स्टोमेटा दिख रहा होगा, एक तरफ आपको क्लोज स्टोमेटा दिख रहा है। क्लियर? सो ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा, ये ओपन एंड क्लोजिंग से ही हमारी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। क्लियर? सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई? हमने क्या कहते हैं, प्लांट्स ने कहाँ से ली? एयर से ली। थ्रू व्हाट? थ्रू टाइनी पोर्स दैट आर नोन एज स्टोमेटा। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अंडर साइड ऑफ द लीव्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होते हैं? गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा सेल्स को कंट्रोल करते हैं। क्लियर एवरीवन? इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी कंडीशन है उसके डिटेल्स में। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या था? प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं प्लांट? सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। जो उनकी रूट्स होती हैं, रूट में बिल्कुल टाइनी टाइनी हेयर्स होते हैं, मेनली वो इस काम को करते हैं। सो वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। सॉइल जो होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, किससे? रूट हेयर से। जो रूट्स होती हैं उसके पतले पतले से हेयर्स होते हैं, उससे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर और मिनरल्स एक साथ एब्जॉर्ब होते हैं और ये क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जाइलम वेसल के थ्रू। जैसे अगर आप समझो, आप क्या कहते हैं अपर फ्लोर्स में आपकी, अच्छा बिल्डिंग सोचिए 5 to 4 फ्लोर्स की है। ठीक है, अब नीचे से पानी खींचने के लिए आपके पास
ऊपर तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप्स होने चाहिए, ठीक है। अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर से पानी को ऊपर पहुंचाना है तो पाइप होने चाहिए। सिमिलरली बस ये समझिए आपके जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो यही काम करते हैं। जो रूट्स आपके उसको एब्जॉर्ब करती हैं, जाइलम वेसल्स वो पाइप की तरह काम करते हैं जो पूरे प्लांट में जाके वाटर की सप्लाई करते हैं। क्लियर। सो जाइलम्स क्या होते हैं, एक पाइप टाइप के आप एक समझिए जो कि वाटर को जो एब्जॉर्ब हुआ है रूट से उनको हर एक प्लांट के पार्ट तक पहुंचाते हैं। क्लियर। सो दिस इज अ फिगर। इसमें देखिए वाटर एंड मिनरल्स जो है वो किससे आपके ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जाइलम से। एंड एक और इसी में चीज़ होती है फ्लोएम, जो आपके क्या कहते हैं खाना जो बनता है आपका, अभी आपने पीछे पढ़ा फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो ये फूड पूरे प्लांट में हर जगह पहुंचाने के काम कौन करता है, एक वैसे होता है, आप उसको फ्लोएम याद रखिए, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक। जाइलम फ्लोएम कंफ्यूज होने के लिए जाइलम जिससे हिंदी में उसको जल कहते हैं तो जाइलम याद रखेगा, और फूड से फ्लोएम, ठीक। तो फूड का कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम। एंड क्या कहते हैं जाइलम किसका कहता है, हिंदी में जल, जैसे जल होता है तो जाइलम। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा याद करने में। ओके। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, किस चीज़ की प्रेजेंस होनी चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट्स खाना बनाते हैं। सो सनलाइट अल्टीमेटली प्रोवाइड क्या कर रही है, सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सनलाइट क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये एनर्जी करती क्या है, जो ये एनर्जी जो होती है वो हमने जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, ठीक है, जो वाटर लिया, अभी आपने पीछे पढ़ा था सिंथेसिस, कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। तो सनलाइट जो एनर्जी ले रही है वो किस में हेल्प कर रही है, एक केमिकल रिएक्शन में। वो क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज इज द फूड, जो आप फूड कह रहे हो ना कि प्लांट खाना बनाती है, ग्लूकोज इज द फूड। ये एक फूड है जो प्लांट्स बनाती हैं, ठीक है। जो प्लांट्स क्या बना रही है, इसकी रिएक्शन की आप देखें, ये देखें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल। ये अभी हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल डिटेल में, ठीक है। उस क्या बनाती है हमारी शुगर्स का मतलब ग्लूकोज, मतलब आप एक कॉमनली समझ लीजिए ग्लूकोज वो खाना बनाती है, ठीक। शुगर्स एक लार्जर उसका मतलब नेम हो गया, ठीक। C6H12O6 ये ग्लूकोज हमारी बनाई, और प्लस ऑक्सीजन रिलीज की, जो हम लोग कहते हैं ना प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो वो इसी रिएक्शन में हमारी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे ग्लूकोज बना मतलब शुगर जो हमारी बनी, ये प्लांट ने यूज़ की, ऑक्सीजन क्या हुई, ये बाहर रिलीज हो गई। क्लियर एवरीवन। सो इसमें क्या हुआ, हमने क्या देखा, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है वो करती क्या है, एक केमिकल रिएक्शन को हेल्प करती है। जो क्या है वो केमिकल रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने एयर से लिया था स्टोमेटा के थ्रू, याद। देन वाटर जो हमने रूट से एब्जॉर्ब किया था, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया था। सो ये दोनों चीज़ें हमारी लीव्स में आई, लीव्स में क्या हुआ, सनलाइट एब्जॉर्ब हुई और ये रिएक्शन हुई जिससे कि फूड बना। फूड क्या होता है हमारा, ग्लूकोज, ठीक। नाउ ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस, इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हुई थी, ठीक। नाउ ये रिएक्शन हमने देखी, ठीक। सो यहाँ अब हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल। अच्छा ये जो आपका कंसेप्ट है ये मैंने आपको क्लास 6 वाले लेक्चर में भी पढ़ाया था कि देखो प्लांट्स जो हैं वो फूड बनाते हैं अपने लिए, बट ये जो ग्लूकोज होता है, जो ये खाना बन रहा है, ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा कहाँ स्टोर हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टोर होता तभी तो हमें भी मिलता है। प्लांट्स अपने लिए भी खाना बनाते हैं और जो वो एक्स्ट्रा फूड बनाते हैं वो स्टार्च की तरह उनके लीफ में, रूट में, अलग अलग पार्ट्स हमने पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर एडिबल, ठीक है। हमने एडिबल रूट्स पढ़ी, एडिबल स्टेम्स पढ़ी, ये सब पढ़े थे हमने। शुगर केन हो गया आपका, रेडिश हो गया, ये सब क्या हुए, कॉलीफ्लावर हो गया, ये क्या हुए,
इन सब में क्या होता है, एज अ स्टार्च हमारा जाके फूड क्या होता है, स्टोर हो जाता है। यही ग्लूकोज हमारा स्टार्च की तरह स्टोर हो जाता है जो कि हम कंज्यूम करते हैं। क्लियर। सो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं जो कि क्या बनता है, ग्लूकोज। और वही ग्लूकोज एक स्टार्च के फॉर्म में सेव हो जाता है जो कि फिर हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर हम देखा जाए, हमारे पास भी, हमारी बॉडी में भी चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे चारों तरफ भी वाटर है, हमारे चारों तरफ भी सनलाइट है, लेकिन हम तो खाना नहीं बना सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। बट प्लांट्स बना सकते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है। क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है, इसी वजह से वो खाना बना पा रहे हैं। ठीक है। कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो भी खाना नहीं बना सकते। तो ऑल हमेशा सारे के सारे प्लांट्स खाना नहीं बनाते, ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स खाना क्यों बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है। सो लीफ सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है। ठीक है। देखिए, जैसे आपकी बॉडी में आपको एक जनरली पता होगा, आपके बहुत सारे ऑर्गन है, आपको हार्ट पता है, आपको ब्रेन पता है, ये क्या है, आपके ऑर्गन है। ठीक। वैसे ही अगर हम लीफ का एक सेल ले लें तो उसके भी बहुत छोटे छोटे से ऑर्गन होते हैं, मतलब ऑर्गेनल होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। अब आपका ब्रेन क्या करता है, आपका सोचने का काम करता है। ये जनरली आपको पता है, आपने डिटेल में अभी कहीं किसी क्लास में नहीं पढ़ा है, तो जनरली आपको पता है आपको क्या कहते हैं, ब्रेन आपका सोचने का काम करता है, आपका हार्ट पंपिंग का काम करता है। वैसे ही आपके लीफ का जो एक सेल होता है वो क्या करता है, वो उसके बहुत सारे उसके पास भी ऑर्गेनल होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है। तो उसमें से एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें कि आपकी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल क्या होती है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है। ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि किस में प्रेजेंट होता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट में। और यही क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। यही क्लोरोफिल पिगमेंट जो हमारा होता है वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है हमारी लीफ के अंदर, जिससे कि खाना बनता है। ठीक। अब ये देखिए आप एक प्रॉपर कि क्या क्या फोटोसिंथेसिस में चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको सन दिखाई दे रहा है, सनलाइट की एनर्जी चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, क्लोरोप्लास्ट अभी हमने पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ठीक है। उसके बाद मिनरल्स, वाटर हमें चाहिए होता है। ठीक। ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है, और शुगर क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक। ये आपको फोटोसिंथेसिस के कंडीशंस पता चल गई। सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मिनरल्स चाहिए जो वाटर और क्या कहते हैं, वाटर होता है और मिनरल्स होते हैं। उसके बाद रिलीज क्या क्या होता है, ऑक्सीजन और शुगर। नाउ क्लोरोप्लास्ट का एक जनरल फंक्शन पढ़िए, अभी आपके लेवल में नहीं है, बस एक जनरल फिगर के थ्रू आप समझिए कि क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में क्या फंक्शन करता है। आपने ये लीफ देखना है, सबसे पहले आप स्टार्टिंग में लीफ देखिए। लीफ को अगर हम बहुत डीपली एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, बहुत डीपली अगर हम क्या कहते हैं ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें आपका सेल स्ट्रक्चर दिखेगा उसका एक छोटा सा। ठीक है। उसमें आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, देखिए ऐसे क्लोरोप्लास्ट का फिगर दिख रहा है, उसके अंदर ग्रैना होते हैं। आपको ये एक जैसे सिक्के का आपको एक इकट्ठा कर देना, कॉइन्स का स्टैक, उस तरह के उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इन्हीं में आपके समझ लीजिए आपका क्लोरोफिल होता है और यहीं पे आपकी सारी फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक। यहाँ पे आप पूरा एक समझिए, क्लोरोप्लास्ट जो आपका पूरा है वो पूरे अलग अलग पार्ट्स पे आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। तो आपके पूरे लीफ में आप समझ गए जो मेन आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसीलिए हमारे चारों तरफ भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट होते हुए भी हम खाना नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट का ऑर्गेनल नहीं है जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है। क्लियर एवरीवन? सो ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर आप समझिए कि जो लीफ के अंदर आप मेनली देखिए लीफ और क्लोरोप्लास्ट, लीफ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसमें कि पूरी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्लियर एवरीवन?
थैंक यू सो मच। होप ये आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई चीज़ ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो आपको नेक्स्ट क्या कहते हैं आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट में हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझेंगे, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ा, प्लांट्स एक तरीके से हमने पढ़े, ऑटोट्रॉफिक मतलब वो खुद खाना बना सकते हैं। अब कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि खुद खाना नहीं बनाते हैं या बनाते हैं फिर भी किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।